Dear students, you are welcome in my YouTube channel Study Zone by ZD Sir. In last class, we have discussed about the first part of the vector in terms of the definitions of the vector, how to represent the vector. Then we will discuss about the addition of the vectors and the properties of the addition of vectors. And after that, we are discussing about the product of the vectors, and in products we are already to be discussed about the scalar product. Here we are just to be considering the next formulation in terms of the vector product. In case of the product of the vectors, two types of the product, one is to be the scalar and other is to be the vector. In last class we have discussed about the scalar products. Today we have discussed about the vector product. Vector product exactly hota kya hai? In last case we have discussed about the dot product, but here we are just to be considering as a cross product. It means the vector A is to be cross multiplied with vector B. Vector A को आपने क्रॉस किया वेक्टर B के साथ एज पर द डेफिनेशंस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणनफल की परिभाषा के अनुसार ये किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एंड द एन केप. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन लास्ट केस वी आर जस्ट टू बी डिस्कसिंग कि इन दोनों का रिजल्टेंट ए डॉट बी का रिजल्टेंट किस फॉर्म में आता था? इन फॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू. इट मींस इट इज टू बी द जो रिजल्टेंट बनता था इट इज ए scalar quantity, but here the resultant are to be in terms of the vector quantity. That's why यदि resultant आपके पास वेक्टर है तो कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शंस के लिए आपके पास क्या होगा? एक यूनिट वेक्टर और द डायरेक्शनल वेक्टर होगा. Here the n cap exactly क्या? it is to be the a और b. दोनों a और b के लंबवत एकांक सदिश है. It means here the n cap is to the directional vector. It is to be representing the direction of the a cross b. और ये डायरेक्शंस क्या होगी? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एज वेल एज द वेक्टर बी. ए और बी दोनों के लंबवत एकांक सदिश के रूप में परिभाषित होगा. यहाँ से दो मेन फॉर्मुलेशंस बनती हैं कि आपको कहीं भी वेक्टर प्रोडक्ट दे रखा और एंगल कैलकुलेट करना हो, देन वी आर जस्ट टू बी कैलकुलेटिंग द साइन थीटा. Here the sin theta is to be in terms of the a vector cross b vector upon magnitude of vector a upon magnitude of a vector b. इसका मतलब जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना हो तो अपन इस फॉर्मुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इसके सेकंड एट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो फॉर्मुलेशंस बनती है, जहां से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. हियर द एन कैप. इट मींस already we are just to be discussing कि n cap is to be the perpendicular to the a and b. तो क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्म में गिवन होगा कि किन्हीं भी दिए गए दो सदिशों के लंबवत एकांक सदिश का ज्ञात कीजिए, या फिर लंबवत 5 इकाई का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, या 10 इकाई का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए. तो फॉर्मुलेशंस एग्जैक्टली वही बनेगी एज पर द डेफिनेशंस. n cap कितना आएगा? इट इज टू बी a क्रॉस b. It means vector A cross vector B upon magnitude of A, magnitude of B sin theta. And this formulation is to be represented by the magnitude of A cross B. क्योंकि यहाँ पर ये entire formulation is to be representing the magnitude of A cross B, and it is to be the representing the direction of A cross B. That's why इसका magnitude किसके इक्वल होगा? magnitude of A cross B. अब ये फॉर्मुलेशंस देखिए एग्जैक्टली अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, बट बिफोर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द फ्यू केसेस. जैसे अपन ने ए डॉट बी में केसेस कंसीडर किए थे, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. Here again we are just to be considering first case when theta equal to 0. It means the sin 0 वैल्यू कितनी होगी? It is equal to 0. तो फॉर्मुलेशंस कितनी हो जाएगी? यदि दो कोई सदिश समांतर है या पैरेलल वेक्टर्स हैं, then their cross product is to be equated by the 0. तो कई बार आपसे पूछा जाएगा, जैसे अपन ने a डॉट b में देखा था, the conditions of the perpendicular क्या थी? When the a and b are to be perpendicular, then अपन ने फॉर्मुलेशन देखा था a डॉट b equal to 0. तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस में कहीं भी आपको परपेंडिकुलर से रिलेटेड कुछ प्रूव करना हो तो वी आर यूजिंग द कौन सी फॉर्मुलेशंस? डॉट प्रोडक्ट. और जब भी आपको पैरेलल से रिलेटेड प्रूव करना हो तो वी आर जस्ट टू बी यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट हियर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b की फॉर्मुलेशन कितनी होगी? 0. इफ वी आर कंसीडरिंग थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस sin 180 डिग्री इट इज आल्सो टू बी इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई जब भी कोई दो सदिश समांतर होंगे या प्रति समांतर होंगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, तो हमेशा उनका सदिश गुणनफल कितना होगा? 0 होगा.
तो कई बार इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिशंस में भी बनते हैं कि इफ द गिवन वेक्टर्स आर ए एंड बी, आपको गिवन होंगे इन टर्म्स ऑफ द 2i + 3j + 4k, और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो कहीं भी कोई वेरिएबल दे देगा उसकी वैल्यू, या फिर पूछ लेगा कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, या फिर आपको कोई भी ऑप्शंस देके पूछ लेगा कि आउट ऑफ दीज ऑफ 4 ऑप्शंस which vectors are to be parallel और which vectors are to be perpendicular। तो एग्जैक्टली बस डायरेक्ट याद रखना है a डॉट b इक्वल टू 0 तो परपेंडिकुलर होंगे, a क्रॉस b इक्वल टू 0 तो दे आर टू बी पैरेलल। नेक्स्ट वी आर कंसीडरिंग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस व्हेन a एंड b आर टू बी परपेंडिकुलर। तो उस केस में a क्रॉस b कितना होगा, इट इज टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द ab। और यदि आपको डॉट में ध्यान हो तो अपन ने जब a पैरेलल टू b किया था तब आपके पास a डॉट b किसके इक्वल आता था, ab के इक्वल। इट मींस यदि अपन किन्हीं भी दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करें तो वो आपके पास ab के इक्वल आएगा, इसका मतलब वो कैसे होंगे, दे आर टू बी द पैरेलल वेक्टर। इसी को आगे अपन फर्दर रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द i, j एंड k। इसका मतलब आप i कैप, j कैप, k कैप के दे आर टू बी द पोजिशनल वेक्टर्स, सॉरी दे आर टू बी द डायरेक्शनल वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। i किससे रिलेटेड है, x एक्सिस से, y किससे रिलेटेड है, सॉरी j किससे रिलेटेड है, y एक्सिस से, और k किससे रिलेटेड है, z एक्सिस से। तो फर्स्ट फॉर्मुलेशन यदि अपन थीटा इक्वल टू 0 वाला केस कंसीडर करें, देन i क्रॉस i कितना होगा, इट इज टू बी द sin 0, sin 0 होते हैं कितना हो जाएगा, 0। सेम j क्रॉस j भी 0 होगा, k क्रॉस k भी 0 होगा। इसका मतलब जब अपन ने i डॉट i देखा था, दे आर टू बी इक्वेटेड बाय 1, बट हियर द i क्रॉस i इज टू बी इक्वेटेड बाय 0। तो सेम टाइप के वेक्टर्स का यदि आपसे पूछा जाए कि सेम वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कितना होगा, इट इज टू बी इक्वल टू द 0 वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट व्हेन वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग i क्रॉस j, तो फॉर्मुलेशंस कितनी होगी, यदि आप सॉल्व करना चाहे i क्रॉस j को तो फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, मॉड ऑफ i mod of j into sin 90, sin 90 equal to 1 होता है, then we are considering the n cap, it is to be the directional vector। तो ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, into it is to be the n cap। अब ये जो n cap है ये डायरेक्शनल वेक्टर, और ये डायरेक्शनल वेक्टर वी आर ऑलरेडी टू बी कंसीडर्ड कि इट इज टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो यदि आपने i और j ले रखे हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इट इज टू बी द k वेक्टर, क्योंकि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस they are to be perpendicular to each other, they are to be mutually perpendicular। it means यहाँ पर भी फॉर्मुलेशन यही होगी, i क्रॉस j किसके इक्वल होगा, k की। सेम प्रोसेस अपन j क्रॉस k में भी करेंगे। तो here to remembering these things we are just to be concluded कि जब आप i से j की तरफ जा रहे हैं, it means we are just moving through the anti clockwise formulations। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। इफ यू आर जस्ट टू बी मूविंग इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन आवर आंसर इज टू बी नेगेटिव। क्लियर। यदि आप i क्रॉस j करते हैं तो k के इक्वल आएगा, i क्रॉस k करते हैं तो इट इज टू बी इक्वल टू -j। तो जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव साइंस आएंगे, व्हेन वी आर मूविंग इनटू द एंटी क्लॉकवाइज देन द साइंस आर टू बी पॉजिटिव। और ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं कि कब कौन सी फॉर्मुलेशन से बनेगी। नेक्स्ट वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपके पास n कैप से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उनको आप सिंपलीफाई कैसे करेंगे, या फिर आपको a क्रॉस b कैलकुलेट करना हो तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट द a क्रॉस b, हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द जनरलाइज्ड फॉर्मुलेशंस। हियर टू वेक्टर्स a एंड b आर टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द a वेक्टर एंड द v वेक्टर। a क्या कैसे डिफाइंड है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड b वेक्टर डिफाइंड है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। आपको कैलकुलेट करना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, देन अपन डिटरमिनेंट की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हियर द i j के a1 a2 a3, इट मींस फर्स्ट a वेक्टर को पुट अप कर देंगे, नेक्स्ट b वेक्टर को। इन सम बुक्स i j के आपको कॉलम की फॉर्म में भी लिखे हुए मिलेंगे, तो इट्स योर चॉइस कि आप उसको कॉलम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं और इन टर्म्स ऑफ द आप इनको रोज की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। बिकॉज इन केस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट, सारणिक के प्रसार में अपन देख चुके हैं कि अपन उसका किसी भी रो के रेस्पेक्ट में भी प्रसार कर सकते हैं और अपन उसके कॉलम के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम ही बनता है। इसी चीज को समझने के लिए हियर वी आर कंसीडरिंग एन एग्जांपल। सपोज a वेक्टर गिवन है i प्लस j प्लस k, b वेक्टर गिवन है 2i प्लस j माइनस k। a क्रॉस b आपको कैलकुलेट करना है, देन वी आर जस्ट टू बी सिंपली यूजिंग द i j k फॉर्मुलेशंस। अब आपके पास जो फॉर्मुलेशन बनेगी a, i का कोऑर्डिनेट 1, j का कोऑर्डिनेट 1, k का कोऑर्डिनेट 1।
बी के लिए इट इज टू बी 2 1 एंड -1, साइन चिन्ह के साथ आपको हमेशा कंसिडर करना है। देन अब जब अपन इसका प्रसार करेंगे, आई के रेस्पेक्ट में प्रसार किया, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दिया, 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 -1 एंड -1 इट इज टू बी -2i कैप। जे अपन प्रसार में ऑलरेडी पढ़ा था, साइंस किस तरीके से होंगे, चिन्ह कुछ इस प्रकार बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस की फॉर्मेट में। तो अपन ने जे के लिए ऑलरेडी माइनस कंसीडर कर लिया। देन इस रो को, इस कॉलम को आपने छोड़ दिया, -1 इंटू -1, फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी यहाँ पर, +1 इंटू -1, फॉर्मुलेशंस इट इज टू बी द -1 एंड 2 इंटू 1 इक्वल टू -2, देन -2 एंड -1 इक्वल टू -3, माइनस एंड माइनस इट इज टू बी द +3i कैप। नेक्स्ट के रेस्पेक्ट में अपन इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 2, इट मीन्स 1 माइनस 2 इट इज इक्वल टू -1। तो क्या फॉर्मुलेट बन गया, a क्रॉस b इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। यहां से ये चीज तो क्लियर है कि जब अपन ने a डॉट b किया था तो our answer is to be in terms of the constant value, but here the answer is to be in terms of the ijk में आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर प्रोडक्ट है, और जहां पे आंसर कांस्टेंट आ रहा है इट मींस इट इज टू बी ए स्केलर प्रोडक्ट। अब यदि आपको यहां से पूछा जाए कैलकुलेट द n कैप, देन n कैप के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, देन मैग्नीट्यूड आर टू बी, इसका कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10 + 4 14, √14। देन n कैप की फॉर्मुलेशन कितनी बन जाएगी, इट इज टू बी द a क्रॉस b फॉर्मुलेशंस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। देन इसको जब आप फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मुलेशन बनेगी, इट इज टू बी द -2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप डिवाइड बाय √14। इंडिविजुअल वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए, -2 अपॉन √14 i कैप प्लस 3 अपॉन √14 j कैप -1 अपॉन √14 k कैप, इट इज टू बी द आंसर। यदि यहाँ पे आपको पूछ लिया जाता है कि आपके पास a और b वेक्टर देकर कि a और b वेक्टर के लंबवत 5 इकाई का एक सदिश बताइए, तो अपन इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते। बेसिक्स फॉर्मुलेशंस आपके पास यही बनेंगी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब अपन फर्दर डिस्कस करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड और कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस अपन से पूछी जा सकती हैं और उनको अपन सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सम क्वेश्चंस आर टू बी इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया की रिस्पेक्ट में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी अपन देखेंगे कि जब अपन को एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तो अपन किस तरीके से उनको सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी आपको सिंप्लीफिकेशंस करना हो तो दोनों बेसिक मेथड्स आप जरूर ध्यान रखें, उन्हीं बेसिक मेथड्स के बेस पे अपन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अपन किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, वो भी किसका, ट्रायंगल का। इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना, जब अपन को त्रिभुज के क्षेत्रफल की फॉर्मुलेशंस होगी तो कहीं ना कहीं अपने पास इस तरीके की फॉर्मुलेटेड होगी त्रिभुज। यदि आपको ये वेक्टर a गिवन है, ये वाला वेक्टर b गिवन है, दे आर टू बी स्टार्टेड विद द सेम पॉइंट a b एंड b c, तो ये क्या बन गया आपके पास एक त्रिभुज। और यहाँ पर जब भी अपन त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मुलेशंस कितनी होगी, इट इज टू बी 1/2 इंटू क्या फॉर्मुलेशंस होता है आपके पास, त्रिभुज का आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर जब अपन वेक्टर फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं तो वी आर जस्ट टू बी स्टार्टेड विद द ए बी वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, ए सी वेक्टर के साथ। इसका मतलब इट इज टू बी द बेसिक फॉर्मुलेशंस। यदि कहीं आपको त्रिभुज के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से उनकी किन्हीं भी दो साइड्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग कि इन दोनों में देखिए बोथ द वेक्टर्स आर टू बी स्टार्टेड विद ए। यदि आप इसको इस तरीके से आपको बी वेक्टर यहां ना देकर कुछ इस फॉर्मुलेशन में यहाँ पे गिवन होता, देन आवर रिजल्टेंट ये किस फॉर्मुलेशन में आता, 1/2 किस फॉर्मुलेशन में आता, दे आर टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द बी, दिस टू बी द BA इंटू BC वेक्टर। क्लियर है, बी केयरफुल अबाउट इट कि आपको दोनों के दोनों कहां से, एक ही पॉइंट से कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करने हैं। यदि अपन इसी फॉर्मुलेशंस के साथ कहीं आपको फॉर्मुलेशंस ए बी सी तीनों साइड्स ऑलरेडी गिवन हो, इट मींस यहाँ पे बी की जगह पे आपको क्या गिवन हो, सी गिवन हो, तो उस फॉर्मुलेशंस में अपन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उस चीज के लिए देखिए। अब आप ए बी को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं,
ए बी को यदि आप कहीं भी लिखेंगे, आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा, तो अपन क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ द बी माइनस ए की टर्म्स में लिखेंगे, और ये जो टर्म्स होगी इसको अपन किस टर्म्स में लिखेंगे, सी माइनस ए की टर्म्स में लिखेंगे। यही फॉर्मुलेशंस आपके पास बनेंगी। जब अपन इनको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास सिंप्लीफाई की कुछ फॉर्मुलेशन इस प्रकार की आती है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। बट बी केयरफुल अबाउट इट, ध्यान रखना इस चीज को, कौन सा फॉर्मुलेशंस कब काम में लेना है। यदि कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं कि अपन को बेसिक्स पे ध्यान देना है। यदि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मुलेशंस आपको क्लियर है कैसे अडॉप्ट करना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मुलेशंस क्या है, आपको कहीं ना कहीं पॉइंट ए बी और सी तीनों बिंदुओं की स्थिति सदिश गिवन है कि ये तो ए है, ये बी है और ये आपके पास क्या है, सी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइड ए बी कैलकुलेट कर लो, फिर साइड बी सी कैलकुलेट कर लो, फिर भी आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मुलेशंस लेके भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ से कई बार आपके पास एक फॉर्मुलेशंस किस फॉर्म में बनेंगी कि आपके पास जो भी दिए गए तीनों पॉइंट्स, अपन किसकी बात कर रहे हैं, एबीसी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ये जो तीनों बिंदु आपको दिए गए हैं ये समरेख है या नहीं, इसका मतलब दे आर टू बी कोलिनियर और नॉट। ये आपके पास कोलिनियर है या नहीं, इस चीज को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अपन ने जब डिटरमिनेंट पढ़ा था, सारणिक पढ़ा था, तब भी अपन ने देखा था यदि कोई भी दिए गए तीन बिंदु क्या होंगे, समरेख होंगे, दे आर टू बी द कोलिनियर, तो उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की फॉर्मुलेशंस में क्या आ रहा है आपके पास, यही फॉर्मुलेशंस आ रहा है। इसका मतलब अपन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होंगे, ए बी सी बिंदु समरेख होंगे। या फिर दूसरा फॉर्मुलेशन यहां से ले तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये आपके पास किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इट इज टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलिनियरिटी। ये आपके पास किससे रिलेटेड होगी, समरेखता से रिलेटेड होगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को और साथ में डिस्कस करते हैं कि जब अपन ने ए डॉट बी पढ़ा था उसके बाद में कई बार आपको प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल्स की भी बात करेंगे, उसका एरिया भी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी भी बात करते हैं। पहले अपन यदि फॉर एन एग्जांपल अपन कंसीडर करें कि आपके पास कोई फॉर्मुलेशंस दे रखी हैं कि द 3 पॉइंट्स की अपन बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स, ए पॉइंट आपको गिवन है 1, 2 एंड 3, बी पॉइंट आपको गिवन है 2, 3 एंड 4 और सी पॉइंट आपको गिवन है 3, 4 एंड 5। इसका मतलब ये तीनों गिवन और आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस कि आप किस फॉर्मुलेशंस के साथ जाते हैं। आप चाहें तो आप इसको इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, ए इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली आपके पास यहां से बी की फॉर्मुलेशन कितनी बन जाएगी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सी की फॉर्मुलेशन कितनी बन जाएगी, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मुलेशंस कितनी होती है, 1/2 इंटू क्या फॉर्मुलेशंस थी, ए बी क्रॉस बी सी, सॉरी ए सी, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा आपके पास, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फॉर्मुलेट करेंगे बी माइनस ए तो कितना आएगा, 2i माइनस आई कितना बनेगा, आई कैप। 3 माइनस 2 कितना बनेगा, जे कैप। 4 माइनस 3 कितना बनेगा, 1, इट इज टू बी के कैप। तो ए क्रॉस बी आ गया। सिमिलरली अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एक सी कैलकुलेट करेंगे। ए सी कितना होगा, इन टर्म्स ऑफ द सी माइनस ए वेक्टर होगा। तो देखिए सी माइनस ए जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2i कैप। 4 माइनस 2 2j कैप। 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2k कैप। यही फॉर्मुलेशंस बनेगी। अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हियर द डेल कितना आएगा, 1/2। डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते थे, इन टर्म्स ऑफ द आई, जे एंड के। वैल्यूज पुट अप करते हैं, इधर कोफिशिएंट कितना है, 1 1 1, इधर कितना है, 2 2 2। यदि आपने डिटरमिनेंट अच्छे से पढ़ा तो आप यहाँ पे डिटरमिनेंट के लॉज भी लगा सकते हैं, सारणिक के नियम भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 1 है,
यहाँ पर 2 2 है, यदि मैं इससे 2 कॉमन लूंगा तो ये 1 1 बन जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2/2 के फॉर्मुलेशंस में आ गया i j k, ये 1 1 1, ये 1 1 1। और अपन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं कि व्हेन द टू रोज द एलिमेंट्स ऑफ द टू रोज आर टू बी सेम, किन्हीं भी दो पंक्तियों के अवयव यदि समान हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, इट इज इक्वल टू 0। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपके पास कितना बनेगा, इट इज टू बी द 0। या फिर इसी को तीनों पॉइंट्स को देके आपसे पूछा जा सकता था कि प्रूव दैट दे आर टू बी कोलिनियर, ये पूछ सकता था कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि दे आर टू बी ABC आपके पास क्या है, कोलिनियर, समरेख है। तो यदि आपसे ये पूछा जाता तो भी अपन ऐसे ही सिंप्लीफाई करते, समरेखीयता से रिलेटेड अपन ये कैलकुलेट करते, इफ एरिया इज टू बी 0 देन दे आर टू बी कोलिनियर। तो यहां से अपन ने इस तरीके के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लिया। अब एक क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली आपके पास बनता है कि आपके पास A का B पर प्रोजेक्शन कितना होगा या फिर B का A पर प्रोजेक्शन कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए अपन को डायरेक्टली फॉर्मुलेशंस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार ऐसा पूछा जाता है कि आपको कोई भी दो वेक्टर A एंड B वेक्टर्स गिवन होंगे, A एंड B वेक्टर्स, और फिर आपसे फर्स्ट पूछा जा सकता है कि द प्रोजेक्शन ऑफ A अपॉन द प्रोजेक्शन ऑफ A अपॉन B, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, कि A पर B का प्रोजेक्शन कितना होगा, द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, B पर A का प्रोजेक्शन कितना होगा। तो यहां पर यदि इसको हिंदी में लिखना चाहो तो B वेक्टर पर A वेक्टर का प्रक्षेप कितना होगा। तो अपन इसको किस फॉर्मुलेशंस में लिखेंगे, इट इज टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द, क्या फॉर्मुलेशंस पढ़ी है अपन ने, A डॉट B से रिलेटेड ये फॉर्मुलेशन है, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। यदि आपको B पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो B से डिवाइड करेंगे, और यदि आपके पास क्या करना है, A वेक्टर पर B वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर किस फॉर्मुलेशंस में लिखेंगे, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन वेक्टर A का B पर प्रक्षेप या B का A पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, इसको अपन किस रूप में लिखेंगे, इट इज टू बी द प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर, A वेक्टर पर B का प्रोजेक्शन कितना होगा। फॉर एन एग्जांपल यदि अपन यहाँ पे कंसीडर करें, क्वेश्चंस आपको कुछ इस रूप में दिया हुआ हो सकता है कि A वेक्टर आपको दे देगा 2i प्लस 3j माइनस k कैफ, एंड आपको B वेक्टर दे देगा इट इज टू बी टर्म्स ऑफ द i माइनस j प्लस k। आपको पूछ लेगा, पहला पूछा जा सकता है कि A का B पर प्रक्षेप, इसका मतलब आपको पूछा जा सकता है कि आपके पास A का B पर, इट मींस ये आपको कैलकुलेट करना है द प्रोजेक्शन ऑफ A ओवर द B और अपॉन द B, देन फॉर्मुलेशंस कितनी होगी, इट इज टू बी द A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B और द मैग्नीट्यूड ऑफ B। A डॉट B कितना होगा, 2 इंटू 1 कितना बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना बनेगा आपके पास, 1 प्लस 1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3, क्या फॉर्मुलेशन मिलेगा, 3 1 4, इट इज टू बी माइनस 2 बाई रूट 3। ये तो आपके पास किसका, A का B पर प्रक्षेप आ गया। यदि सेकंड अपन कैलकुलेट करना चाहें B का A पर प्रक्षेप, इट मींस प्रोजेक्शंस ऑफ A अपॉन B, प्रोजेक्शन ऑफ B अपॉन A पर B का प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, देन द आंसर किस फॉर्म में आएगा, इट इज टू बी द A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। फॉर्मुलेशंस A डॉट B अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द -2, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना आएगा, A का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, इट इज टू बी -2 अपॉन रूट 14। तो इट इज द प्रोजेक्शंस ऑफ B अपॉन द A, इट इज टू बी द प्रोजेक्शन ऑफ A अपॉन द B। A का B पर प्रक्षेप या B का A पर प्रक्षेप या घटक के रूप में अपन